اور دوسری جانب جو ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں اسلام آباد میں وزیر اطلاعات جو ہیں مریم اورنگزیب وہ پریس کانفرنس کر رہی ہیں، جہاں ایک کمپلیٹ اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن کے ساتھ ریکمنڈیشنز مرتب کر دی گئی ہیں، اور جو ڈیفائننگ مومنٹ ہے فاٹا کے لوگوں کے لیے، اور سب سے جو اچھی بات ہے کہ فاٹا کے اندر بیٹھ کے فاٹا ریفارم کے اوپر رپورٹ بنائی گئی، اور وہاں کے جو سینیٹرز ہیں، وہاں کے جو ایم این ایز ہیں، وہاں کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں، وہاں کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، سول سوسائٹی ہے، ان سب کو انگیج کر کے یہ رپورٹ کی ریکمنڈیشن دی گئی جو آج کیبنٹ میٹنگ کے اندر پیش کی گئی۔ اور میں قادر بلوچ صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اس کے اوپر تفصیل سے آپ کو بتائیں، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے انہوں نے آج بھی ڈسکشن کے اندر، اور پورا جو پروسیس تھا اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ کا اس کے اندر بھی۔ تو اگر قادر بلوچ صاحب، اور ہاں جی، میں یہ بھی کہوں گی کہ جو کمیٹی تھی جو سرتاج عزیز صاحب کی سربراہی میں پرائم منسٹر نے بنائی تھی، اس کی کمپلیٹ جو رپورٹ ہے اور جو انہوں نے ایکٹیویٹیز کی ہیں، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ فاٹا کے اندر بیٹھ کے یہ رپورٹ کے اوپر کام ہوا، تمام ریجنز میں ٹریول کیا اس کمیٹی نے، اور بہت سہرایا گیا پوری کیبنٹ نے، جو ان کے ممبرز تھے، خاص طور پہ سرتاج عزیز صاحب اور قادر بلوچ صاحب، جن کی بہت پرسنل لیول کے اوپر انگیجمنٹ رہی ہر لیول کے اوپر، اور پرائم منسٹر نے بھی بہت اپریشیٹ کیا اور ایکنالج کیا کہ آج سے پہلے کبھی بھی اتنا تفصیلی جائزہ اور ریکمنڈیشن مرتب نہیں کی گئی، اور آپ بالکل ایک کنسلٹیشن کے بعد میرے خیال میں فاٹا کے لوگ وہ دن دیکھیں گے جس کا ان کو صدیوں سے انتظار تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے خیال میں میری تیسری یہ جو ہے نا کوشش ہے کہ میں آپ کے سامنے فاٹا ریفارم سے متعلق آیا ہوں۔ 2 مرتبہ پی آئی ڈی میں نے پریس کانفرنس کی تھی اور فاٹا ریفارمز کے خد و خال اور اس کی تفصیلات سب کے سب آپ کو بتا دیے تھے۔ ممکن ہے آپ ساتھیوں میں سے سارے کے سارے وہاں پر موجود نہیں تھے، لیکن بہرحال میڈیا کے تھرو تفصیلات آپ کے پاس آ چکے ہیں، اخبارات میں ہم نے پڑھے ہوں گے اور ٹی وی میں دیکھے ہوں گے۔ زیادہ تفاصیل میں نہیں جاؤں گا، تھوڑی سی میں آپ کو بریف کروں گا کہ موٹی بات کیا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کے کویسچنز ہم لینے کی کوشش کریں گے اگر آپ کے سوالات ہوں۔ جو ہمارے تجاویز ہیں وہ یہ تھے، فائنلی جو ہماری تجاویز تھے جو کیبنٹ کے سامنے ہم نے رکھ دیے، وہ یہ تھا کہ فاٹا کو خیبر پختونخوا میں مرحلہ وار طریقے سے ضم کیا جائے۔ ہماری تجویز یہ تھی کہ 5 سال کے اندر 5 سال سے پہلے یا 5 سال کے اندر اس کی ضم کرنے کی کارروائی کی جائے، اور ایک 10 سالہ ترقیاتی منصوبہ بنایا جائے، اور اس 10 سالہ ترقیاتی منصوبے کے لیے سفیشینٹ ریسورسز کا بندوبست کیا جائے، اور اس کے لیے تجویز یہ تھی کہ 3% ہمارے ڈویزیبل پول سے فاٹا کی ترقی کے لیے علیحدہ پیسے رکھے جائے، اس کے برابر وہ تقریباً 90 ارب کے قریب بن جاتا ہے، اور 21 ارب اس سے پہلے ان کو ملتے رہے ہیں، دونوں مل کے 10 سال تک یہ پیسے ان کو دیے جائیں، اور اس ترقی سے اس پیسوں سے ترقیاتی طور پر ہم 10 سال میں شاید اس پوزیشن میں ہو جائیں کہ فاٹا کو باقی خیبر پختونخوا صوبے کے برابر ترقیاتی لحاظ سے ہم لا سکیں۔ یہ ہم لوگوں نے جب گئے مختلف جگہوں میں دیکھا، لوگوں سے رائے لی، اور اس کے اوپر تقریباً ایگریمنٹ ملکی لیول پہ تھی، سوائے جمعیت علماء اسلام کے اور پشتونخوا ملی پارٹی محمود خان اچکزئی کے، ان کے ذرا اختلافی نقطہ نگاہ تھے۔ آج بھی جے یو آئی کا نمائندہ اکرم خان درانی صاحب وہاں پر موجود تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ضم نہ ہو جائے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا ایک طریقہ ہے، اور انہوں نے ایک جرگہ بلایا ہے، اور ان کے جرگے سے کہ ان کے جرگے کے ویو پوائنٹ کے لیے انتظار کیا جائے، ان کا جرگے کا ویو پوائنٹ جب آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا جائے۔ اور انہوں نے کہا اصولی طور پر ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ جو ہم نے جرگے کی کارروائی کی، ہم 7 ایجنسیوں میں گئے، اور پھر اس کا FR جو تھے وہ بھی ان کے لوگوں کو بلایا، 8 جرگے ہم نے کیے، اور بلکہ 8 نہیں 16 جرگے ہم نے کیے، اور ہمارے جرگے 2 حصوں میں ہوتے تھے۔ ایک جرگہ ہر ایجنسی میں ہم جب گئے، وہاں پر فاٹا کے جتنے بھی ایلڈرز تھے، جن کو ملک کہتے ہیں، مشر کہتے ہیں، مختلف نام ہیں ان کے، وہ تمام کے تمام جو ان کا بڑا رول رہا ہے پاسٹ میں، یہی لوگ اپنے نمائندوں کو الیکٹ بھی یہی کرتے تھے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم لوگوں نے ہر ایجنسی میں 400 سے 500
कई छोटे एजेंसियों में 300 से कम कहीं पर भी नहीं थे। हमने उनको बुलाया, उनका व्यू पॉइंट लिया। अलावा इसके मीडिया के लोगों का भी दूसरा जिरगा, मीडिया, स्टूडेंट्स और बिजनेसमैन और लायर्स और बाकी ट्रेडर्स और जो भी मुख्तलिफ आरा के लोग थे और पोलिटिकल पार्टीज़, तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ के वहाँ पर जितने भी उनके हेड्स थे उन सबको बुला के उनका भी पॉइंट लिया। और हम समझते थे कि हमारा जो जिरगा ऑल इंक्लूसिव था, ऑल रिप्रेजेंटेटिव था और उसके थ्रू जो राय हमने ली और जिसके नतीजे के तौर पर हमने जो रिकमेंडेशन किए कि उसको ज़म किया जाए, वो इसमें पूरी सपोर्ट थी फाटा की अक्सरियत की। लेकिन JUI और ये दो पार्टियां हैं, उनका व्यू पॉइंट ज़रा मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि वो जो जिरगा करेंगे उसका भी व्यू पॉइंट लिया जाए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहरहाल कहा है कि हम तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। हम इस किस्म का फैसला करेंगे जो मुल्की तौर पर, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैसला है, एक बहुत बड़ा फैसला है और इसमें मुकम्मल तौर पर मुल्क के अंदर जो हमारे फेडरेटिंग छोटी छोटी इकाइयाँ उनकी इंटीग्रेशन मुकम्मल हो जाएगी जो अब तक हुई नहीं थी। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये सादत हमारी पार्टी को हासिल होगा और हमें यकीन है कि हम इंशाअल्लाह जो हमारे मुख्तलिफ राय रखने वाले हमारे दो जमायतें हैं, वो हमारे सियासी इत्तेहादी हैं, हम उनके ऊपर प्रिवेल करेंगे या उनका व्यू पॉइंट हम सुनेंगे और इंशाअल्लाह ये मर्जर की कार्रवाई होगी। लेकिन बहरहाल उनका व्यू पॉइंट ले जाना ज़रूरी है और अगर मुख्तलिफ कोई बात आ जाती है तो देख लेंगे। ये बीबी ने मुझे बताया कि ये सही, ये जो 3% की बात है, ये चूँकि सूबों को अफेक्ट करता है तो कल काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग होने वाली है। ये चीज़ वहाँ पर ले जाई जाएगी क्योंकि इसके बाद फिर ये उसमें अपना क्या कहते हैं उसको NFC अवार्ड में ये जाना है और फिर वहीं पर उसकी ऑफिशियल स्टेटस होगी। तो मेरे ख्याल में इसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस के लिए सूबाई असम्बलियों की एक तजवीज़ थी उनकी तादाद बढ़ाने की अरकान की, सेनेट और कौमी असम्बली में क्या यही फार्मूला बनाया जा रहा है फाटा की जो जी फाटा रिफॉर्म्स के बारे में हमारी रिकमेंडेशन ये थी कि 2018 के इलेक्शन हो तो फाटा के सूबाई नुमाइंदे भी उनमें इलेक्ट किए जाए और ये हमारी एक तजवीज़ थी और ये तजवीज़ है और 18 में वो इलेक्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह उनके नुमाइंदे भी और खैबर पख्तूनख्वा सूबे में होंगे। वो एक प्रैक्टिकल शेप इख्तियार कर लेंगे। कैबिनेट ने डिसीजन क्या किया रिकमेंडेशन के हवाले से, इसका पोजीशन क्या है कि ये अप्रूव हो गई है या नहीं हुई है, या इस पर मज़ीद कंसल्टेशन होगी और इसका टाइम फ्रेम होगा कि इम्प्लीमेंटेशन का, इसकी जो लीगल आपको कानून साजी करनी पड़ेगी। दूसरा, आज जो अफगान महाजरीन की वापसी के हवाले से जो डेडलाइन है उस पर भी कंसल्टेशन होगी। जी आपके दूसरे सवाल का पहले जवाब दूंगा। जहाँ तक अफगान महाजरीन के वापस जाने का डेडलाइन है वो ऑलरेडी फैसला किया जा चुका है 31 दिसंबर 2017 तक और उसकी छोटी मोटी बातें थी वो मामूली वो उसके बारे में मज़ीद उसके ऊपर इस दफ़ा चूँकि टाइम नहीं था तो अगले कैबिनेट मीटिंग में वो ले जाया जाएगा। लेकिन जो डेडलाइन था वो डेडलाइन ऑलरेडी एक्सटेंड की जा चुकी है। और रह गया आपका पहला सवाल कि ये आज फैसला इसके ऊपर हुआ है कि नहीं हुआ, ये हमने पेंड किया है मज़ीद कंसल्टेशन के लिए और इस कंसल्टेशन में 2-3 दिन का वक्फा प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें दिया हुआ है और इस दौरान में मौलाना फजलुर रहमान साहब और महमूद खान अशरफी साहब इन तमाम लोगों से दोबारा कमेटी जाके उनसे रब्ता करेंगी और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू के करीब लाएं। जन साहब ये बताइएगा, हम भी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स बना चुके हैं इस पर और गाने जो पार्लियामेंट है फाटा से उनका ये कहना है कि जो KPK है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन है उस पर और फाटा को अगर इसमें जम कर दिया गया तो इससे मसाइल जो है फाटा के लोगों के उसमें इजाफा होगा, कम नहीं होगा। तो आप कैसे देखते हैं? और सेकेंडली मिनिस्टर साहब आपसे मैं ये सवाल करता हूँ कि PTI की जो तारीख है वो भी अवाम में आ चुकी हैं, उनको अगर बहस के लिए मौका दिया जाए तो क्या समझती हैं? इससे कोई मतलब हुकूमत की साथ तो खराब नहीं होगी? मैं समझती हूँ जी आपका जो सवाल है ये कैबिनेट मीटिंग की ब्रीफिंग है, आपके इन सवालों के जवाब मेरे ख्याल है बाद में भी दिए जाएंगे। हाँ जी वो ज़रूर दें। जी क्या था सवाल जी?
हाँ, फाटा के जी आपकी इंफॉर्मेशन सही नहीं है। फाटा के 19 मेंबर हैं इस वक्त, 8 उसके सेनेट की मेंबरशिप है और 11 कौमी असम्बली की मेंबरशिप है। उनके दस्तखतों से उनकी राय हमारे पास मौजूद है। सब ने इस बात को सपोर्ट किया है कि फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम किया जाए, और न सिर्फ उन्होंने लिख के दिया हुआ है, उनके साथ 2 अलग मीटिंगें भी हमारी हो चुकी हैं। इन एडिशन टू ये रिकमेंडेशन उनकी ऑलरेडी आ चुकी है, और उनकी एक करारदाद भी वहाँ पर कौमी असम्बली में मौजूद है आईनी अमेंडमेंट के लिए कि खैबर पख्तूनख्वा में इसको जम किया जाए। हालांकि आईनी अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। आखिरी सवाल ये जो इशू है फाटा का, देखिए ये सेंट्रल इशू है कायदे आज़म के ज़माने का। हुकूमत के पास बेपना और मसाइल हैं, ये खाम एक नई बहस छेड़ दी गई है जिससे सेटल नहीं होना, तो क्या बेहतर नहीं है कि इसको यूं का दूर आना चाहिए? ना मकसद है कि आप चाहते हैं कि इसको इसी तरह से रहने दिया जाए, स्टेटस को, स्टेटस को। बहरहाल इस बारे में मैं इंतहाई माजरत के साथ नाराज़ ना हो जाना, और कायदे आज़म ने उस वक्त जो फैसला किया वो वक्त और था, 1947 थी, और कायदे आज़म ने पक्का फैसला नहीं किया था कि हमेशा के लिए उनकी ये हैसियत रहेगी। उस वक्त इस बात की ज़रूरत थी कि उनको छेड़ा न जाए, उनका वो तरीक जिसके मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो तालीमी लेवल उनका नहीं आ चुका था, और मुल्क में वो जमहूरी अक़दार उस तरह के नहीं बन चुके थे जो हमारे बाकी मुल्क में। अगर हम ये समझें कि फाटा के लोगों को आज भी जानवरों की तरह, आइंदा 70 साल तो गुजर गए, 70 साल और इसी तरह से ट्रीट करते रहें, फाटा के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। फाटा के लोग कहते हैं कि वो हमसे बेहतर पाकिस्तानी हैं। फाटा के लोग ये कहते हैं कि वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं, उन चीज़ों को समझते हैं। फाटा के लोग ये भी कहते हैं कि हमें जानवरों की तरह ट्रीट न किया जाए, हमारा एक आदमी गलती करे तो हमारे पूरे गांव को जाना उसको डिमोलिश न किया जाए, हमारे पूरे गांव के रहने वाले लोगों को जेल में न डाला जाए। ये वो कानून है FCR जिसके तहत अंग्रेज ने ये कानून बनाया हुआ था। कायदे आज़म को मौका नहीं मिला। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि साल एक और उनको मौका मिलता तो इंशाल्लाह वो इसको उसी वक्त ख़त्म करते, लेकिन हमने उसको 70 साल जारी रखा। तो फाटा के लोग इस बात के लिए मज़ीद तैयार नहीं हैं, किसी सूरत में मज़ीद बर्दाश्त करने के लिए, और मैं उनको अपने से बहुत बेहतर पाकिस्तानी समझता हूं, और अपने लिए जब मैं अपना फैसला 1947 से आनवर्ड आज तक ये करता रहा हूं कि मेरे नुमाइंदे मेरे ऊपर हुकूमत करें, मेरे नुमाइंदों की वजह से मेरे ऊपर कानून बनाए जाएं जो हम पर लागू किए जा सकते हैं, मुल्की निज़ाम को चलाया जाए, तो उनका भी बराबर तौर पर इस किस्म की कार्रवाई पे हक है। वफाकी काबीना वफाकी काबीना के इजलास के बाद इस वक्त इस्लामाबाद में नून लीगी रहनुमाओं की मीडिया ब्रीफिंग जारी थी। और अब हेडलाइंस अब तक।